Hello students, in past video we were discussed some exercise example as well as the illustration. Okay, now in this video we are again continue the some exercise problem. So the fourth problem is given in our textbook is explain the meaning of the statement electric charge of the body is quantized. Actually quantization theory we were already discussed in the past theory session and the same concept is asked in this question. So how can you write this answer? First of all, you have to give the statement of the quantization of charge. ओके यानी कि आपको जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे पहले लिखना है, फिर उसको थोड़ा एलोबरेट करना है, वही उसका आंसर है और कुछ यहाँ पे नहीं अंदर, बराबर. सो हाउ दे आर राइट डाउन द आंसर. Meaning of the quantization of electrical charge is that electric charge possessed by a charged body is always equal to positive or negative integer multiple of elementary charge, that is electron charge. Okay, so that is the statement of the electric charge of quantization. ओके तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है वही का वही लिखना है. यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट को उन्होंने अपडेट किया है, बट हम क्या करेंगे जो हमारा इनिशियल स्टेटमेंट था वही यहाँ पे लिखेंगे. टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व. ओके एंड वॉट एवर द चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज फाउंड टू बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ द व्हाट एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो फ्रॉम दैट लॉ वी आर एबल टू से दैट वेन एवर यू हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी चार्ज बॉडी. Okay, so what you have to do, you have to just write down capital Q equal to n into E. Okay, क्योंकि हमने आगे क्या लिखा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ, तो यहाँ पे n क्या है आपका इंटीजर मल्टीपल, जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है अंदर, बराबर. और उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो वेन एवर वी आर फाउंड एनी बॉडी देन देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज इधर प्लस और माइनस ई, प्लस और माइनस 2e, प्लस और माइनस 3 और एनी नंबर ऑफ plus or minus e. Okay, so our general equation will become any. So from that we are from this mathematical representation we are able to say that the electric charge of the body is what, quantized. Yes or no? Next question is given that why can we ignore the quantization of electric charge when dealing with the macroscopic, that is a large scale charge. So it's a simple phenomenon. Whenever you are deal with the microscopic elements that are having the very large scale of charge, okay, and if you see the quantization rule equation, that is what Q equal to Ne. So whenever you see the constant value of E, that will be 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, and if you see about the number, okay, so for it we are taking one example that if you have the sodium Na plus, okay, and you have to find out the 100 gram sodium having how many charge, then what you are doing, you how many charge, for that you have to know the number of atoms of the sodium in 100 gram. Okay, so for that you are using the theory that is 23 gram Na if you have, then the total number of atom is nothing but it is equal to the what, Avogadro number, that is 6.023 into 10 raised to 23. So you are just imagining that here only 23 gram sodium having the number of sodium equal to how many, 10 raised to 23. Yes or no? Well, in comparison here Q equal to N इक्वेशन हमको दिया है, यानी कि N का E के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो N की वैल्यू 10 raised to 23 24 पे जा रही है, जबकि E की वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस 19 पे जा रही है अंदर. समझ में आया? तो यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ दिस टू पावर वैल्यू. एक का पॉजिटिव है वो भी 23 24 है, जबकि दूसरे का क्या है भाई, माइनस 19 है, बराबर. बस यही पिक्चर है यहाँ पे कि इसीलिए आप इसको इग्नोर करो कि ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं अंदर, बराबर. यही चीज़ हमको थियरी में एक्सप्लेन करके दी गई है अंदर. सो when a body possesses a very large amount of electric charge, so Q equal to N is also very large. It means that N must be very large as वैल्यू ऑफ E इज वेरी स्मॉल, क्योंकि N की वैल्यू बहुत ही लार्ज हो गया अंदर. दस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी एनॉर्मस ऑलमोस्ट काउंटलेस. तो वो सीधी बात इतने ज़्यादा हो गए क्वांटिटी में कि आप काउंट करने बैठोगे तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, बराबर, काउंटलेस हो जाएंगे वो. हेंस डिस्क्रीटनेस गेट कन्वर्टेड इनटू द कंटिन्यूटी. तो हम जो इंडिविजुअल कंसीडर करते थे अभी हमको उनको कंटिन्यूटी में लेना पड़ेगा अंदर, बराबर, क्योंकि इतने सारे हैं और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है, तो फिर सीधी बात है हम एक एक करके थोड़ी सबका चेक करेंगे अंदर. हम सबको एक यूनिफॉर्म सिंगल चार्ज की तरह क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसकी थियोरी को हमारा जो भी लॉजिक होगा उसमें अप्लाई करेंगे.
इट इज समथिंग लाइक व्हेन वी कंसीडर अ ग्लास ऑफ वाटर वी मे इंटरेस्टेड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ द वाटर इन अ बिग टैंक इट वुड बी अ मीनिंगलेस टू थिंक अबाउट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सीधी बात है, एक टैंक में कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए तो काउंट करने का कोई मतलब है अंदर, बस हमको तो ना उसमें कितना लीटर है, कितना मेगा लीटर है, बराबर उसमें ही बात करेंगे, वही हमारे लिए कन्वीनियंट होगा कि नहीं होगा। बस यही चीज़ के लिए यहाँ पे बोला गया, हैंस इन फंडामेंटल डिस्कशन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आर मच मोर एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, हैंस क्वांटाइजेशन कैन बी निगलेक्टेड। तो उसको गिनो ना गिनो कोई फर्क पड़ता नहीं अंदर, वहाँ पे आपको क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, खाली टोटल चार्ज कितना है उससे ही डील करनी है। समझ में आ गया यहाँ पे। चल नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। सो व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विद द सिल्क क्लॉथ द चार्ज अपीयर ऑन द बोथ। अ सिमिलर phenomenon is observed with the many other pair of the body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. So for that what you have to do, you have to first of all write down the conservation law of the charge. Okay, so total charge in the system remain constant, charge neither be created nor be destroyed, it is always transferred from one body to the another. ध्यान रखना converted नहीं लिखना है, ट्रांसफर लिखना है, क्योंकि चार्ज कन्वर्ट नहीं होता, ट्रांसफर होता है अंदर, बराबर। तो ये लो आपने लिख दिया। अब आपको बताना क्या है, बराबर। वेन एवर वी आर टेकिंग वन ग्लास रोड एंड द सिल्क क्लॉक इनिशियली, so both are the what actually insulator and they are the what electrically neutral completely, and we know that every element in normal nature they are available in the electrical neutral. ओके तो जो भी वो अवेलेबल वो इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे कि नहीं होंगे अंदर, बराबर। नाउ इफ यू checking these two object system initially, glass rod also having the charge value equal to 0 as well as silk cloth also having the charge value equal to 0, so net resultant charge is also become 0, yes or no. Now whenever you are rubbing these two object with respect to each other, yes or no, अब जब भी ये दो ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी सरफेस पे हुए थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन आ गए जो थोड़े लिबरेट होंगे, फ्री हो गए, उसको क्या करेगा, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा अंदर, बराबर। तो यहाँ पे हुआ क्या, बराबर, पापा की मनी बच्चे के पॉकेट में गई, बराबर। वैसा ही फिर घर की जो प्राइस है वो तो वही की वही रही अंदर, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन थे, बराबर, एक के पास वो दूसरे पे गए। तो यहाँ पे होता क्या है कि वेन एवर एनी बॉडी रिलीज द इलेक्ट्रॉन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज, एंड वॉट एवर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द अनदर बॉडी दैट विल बिकम द नेगेटिव चार्ज, एंड वी आर फाउंड दैट हियर value of the positive charge and negative charge will become same. So after the rubbing what will happen, yes both are the body are electrical charge, पर यहाँ पे जिसका इतना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और आप जब भी टोटल चार्ज फाइंड करोगे तो सीधी सी बात है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उसमें से उतनी ही नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो गया कि ना हो गया। तो यहाँ पे रूल्स क्या हुआ, इनिशियली द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0 एंड आफ्टर द रबिंग अगेन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। यहाँ पे सिस्टम में हर बार बोल रहा हूँ तो उसका ध्यान रखना, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं करनी, यहाँ पे सिस्टम की बात करनी अंदर, बराबर। तो हो गया ना, यहाँ पे नहीं चार्ज क्रिएट हो नहीं डिस्ट्रॉय, क्योंकि एक का जो चार्ज था वो दूसरे में ट्रांसफर हुआ है ओनली, बराबर है। जबकि यहाँ पे टोटल चार्ज का कोई भी वैल्यू में चेंज भी हमको देखने को नहीं मिला, जो इनिशियली था वही फाइनल था। हो गया काम पूरा अंदर, वही चीज़ हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दी होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी विथ नेट चार्ज 0 आर रब विथ ईच अदर, बराबर, देन पार्ट ऑफ एनर्जी स्पेंड फॉर रबिंग इज गिवन टू द सम इलेक्ट्रॉन विच गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। यहाँ पे होता क्या है कि व्हेन आर रबिंग, तो रबिंग की जो एनर्जी फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना जो एटम है उसको छोड़ के दूसरी बॉडी के एटम में क्या करते हैं, घुसते हैं अंदर, बराबर। सो इफ द फर्स्ट बॉडी लूजेज द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रबिंग, देन सेकंड बॉडी गेन्स ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, okay. Thus in the process of charging by friction, final charge on the body become the plus Ne, while on the second body will become the minus Ne, and if you taking the total charge summation, then positive N in minus Ne will become 0, and initially again total charge is 0. So here we are said that द टोटल चार्ज गेट कंजर्व्ड। यहाँ पे चार्ज का टोटल जो भी है उसका क्या हुआ है भाई, कंजर्वेशन हुआ है। क्यों कंजर्वेशन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वैल्यू में हमको कोई चेंज देखने को मिला नहीं है यहाँ पे अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है वो कैलकुलेशन बेस्ड है।
बराबर। तो वहाँ पे क्या बोला है कि 4 पॉइंट चार्ज QA, QB, QC एंड QD ऑल आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, बराबर। यानी कि आपको यहाँ पे 4 चार्ज दिए गए अंदर, उसमें से 2 पॉजिटिव सेम वैल्यू के और 2 नेगेटिव भी सेम वैल्यू के अंदर, बराबर। एंड ऑल दिस 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द स्क्वायर हैविंग द लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? So what we have to find out here, what is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square। यानी कि ये 4 तो ऑलरेडी थे, एक 5वां चार्ज यानी कि 5th चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सो हाउ कैन यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द 2 diagonal and wherever 2 diagonals are intersect, that point we are consider as the what center of the square and name it as O। here ABCD name is already given। so at O there is a 1 microcoulomb यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमको यहाँ पे प्लेस करके दिया गया है और ये पॉजिटिव चार्ज पर हमको एग्जर्ट होता टोटल फोर्स फाइंड करना है अंदर। तो सीधी सी बात है कि चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? दूसरा चार्ज होगा वही लगाएगा। सो हाउ मेनी एक्स्ट्रा चार्ज आर देयर इन द रीजन ऑफ दिस 1 microcoulomb चार्ज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यस और नो? समझ में आ रहा है, बराबर। तो आपको सबसे पहले सिंपली इस तरह से स्क्वायर बना देना है, बराबर। आपको नेमिंग दे देना है ABCD। सर मुझे यहाँ से देना है, चलेगा? हाँ चलेगा भाई, आपको जहाँ जिस तरह से नाम देना है दे दो अंदर, बराबर। पर जहाँ पे जो नाम दे रहा हो उसका चार्ज का पोजीशन वहीं पे होना चाहिए अंदर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे उन लोगों ने एक ही पोजीशन यहाँ पे लिए, तो यहाँ पे QA इक्वल टू +2, फिर -5, फिर +2 और फिर से -5 हो गया अंदर। नाउ as per the theory we are know that whenever a positive charge come into the contact with the negative charge, then what type of force is here exert? Attractive type, yes or no? बराबर। तो जब भी पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज के करीब होगा और उसके बीच में हम फोर्स की एप्लीकेशन देखेंगे तो हर बार क्या होगा? अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। बट इंस्टेड ऑफ द नेगेटिव, इफ वी आर फाउंड दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देन दिस फोर्स विल बिकम द रिपल्सिव फोर्स, यस और नो? सो अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा? जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर बुलाएगा, आजा मेरे पास, बराबर। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो जो दूसरा वाला हमारा ये वाला जो O वाला पॉजिटिव है उसको क्या बोला? चल दूर जा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसको धकेलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले बात करें A की, तो A भी पॉजिटिव है और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात से A का एग्जर्ट होता फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? OC होगी कि नहीं होगी अंदर, यस और नो? सो दैट्स वाई दे हैव राइट डाउन हियर FOA, यानी कि O पर A की वजह से लग रहा फोर्स FOA, जिसकी डायरेक्शन क्या हुई भाई? OC हुए। तो आपको यहाँ पे साइड पे लिख देना है कि FOA बराबर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? OC। समझ में आ रहा है? उसी तरह आप B की बात करो तो अब ये तो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो तो क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा, बराबर। तो FOB जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? OB ही होगी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, बराबर। उसी तरह C की बात करो, अगेन पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। सो कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा? OA की पकड़ेगा, बराबर। तो लिखो FOC इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ OC मिलेगी आपको अंदर। उसी तरह से बराबर से, सॉरी OC नहीं मिलेगी, OA मिलेगी। समझ में आ रहा है? FOC की जो डायरेक्शन है वो कौन सी मिलेगी? OA, क्योंकि वो OA की डायरेक्शन में जा रहा है। उसी तरह आप D के बारे में बात कर, वो अपनी ओर खींचेगा, बराबर। तो वहाँ पे FOD की डायरेक्शन कौन से आएगी? OD वाली आएगी कि नहीं आएगी अंदर? तो आपको फिगर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है और फोर्सेस किस तरह से बताना है वो समझ में आ गया सबको अंदर, बराबर। अब आपको क्या करना है? Now you have to find out the magnitude of all these forces, because whenever you have to find out the total net force, then you must know the direction as well as the value of all the forces. Okay, based on the direction you have to do the addition, subtraction, or you have to use the component theory sin theta cos theta वाली, बराबर। और उसके बाद आपका जो भी आंसर आता है वहाँ से हम बोल सकते हैं कि फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स लगा। तो हमको यहाँ पे FO के बारे में बात करना है, तो आपको क्या करना है? FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, ये चारों के चार फोर्स की वैल्यू, डायरेक्शन तो हमको पता चल गया, वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कूलम फोर्स? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यस और नो?
Q1 तो बाय डिफॉल्ट 1 माइक्रोकूलम होगा क्योंकि उस पर ही फोर्स हमको फाइंड करना है, और Q2 पहली बार में आपको A वाला लेना है, B वाला, फिर C वाला, और फिर क्या लेना है, D वाला लेना है। समझ में आया कि नहीं अंदर? तो आपको सारे के सारे फोर्स फाइंड करने हैं अंदर। तो आपको FOA मिलेगा, FOB, उसी तरह FOC और FOD, चारों के चार फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है बराबर? पर यहाँ पे सब वैल्यूज अवेलेबल, बट वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। सो हियर ऑलरेडी स्क्वायर इज गिवन and square length is 10 centimeter. Just draw this diagonal. So this will become the what? Right angle triangle, yes or no? Here right angle triangle, both the side has 10 centimeter. So you are able to find out the diagonal, yes or no, by using the Pythagoras. Now as you are getting your diagonal length, just divide by 2. Why? Because diagonal of the square are bisect each other, यानी कि वो दोनों को आधे आधे पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो वहीं पे हमारा वो है, हमको डिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक लेना है, O और C, OD, OA, OB, यानी कि आपका जो डायगनल है उसका आपको हाफ लेना है। तो जो भी आपको पाइथागोरस का यूज़ करके डायगनल मिला है उसकी वैल्यू हाफ कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका OA, OB, OC, OD मिल जाए, बिकॉज ऑल आर द सेम, यस और नो, बराबर। अब आपको डिस्टेंस अवेलेबल है, चारों की चार फॉर्मूला फाइंड करने का आएगा कि नहीं आएगा? जब भी आप फाइंड करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे FOA और FOC दोनों की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। वाई? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, पॉइंट भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो फिर बचा क्या चेंज का, कुछ नहीं ना, बराबर। तो आपको A की और C के दोनों के फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, सेम मिलेगी। उसी तरह B की और D की बात करो, उसकी भी वैल्यू आपको क्या मिलेगी भाई, सेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, हाँ के ना, बराबर है। पर आप अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आपको FOA की वैल्यू और FOC की वैल्यू सेम मिल रही है, एंड बोथ आर exerted in mutually opposite direction, and we know that whenever two same magnitude of force exert in mutually opposite direction, then resultant force will be become zero, and this is the condition for the balance force। ये कंडीशन किसकी है, बैलेंस फोर्स की अंदर, बराबर। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स ये दोनों का क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उसी तरह से आप FOB और FOD दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी अंदर। और अगेन दिस टू फोर्सेस आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एक्सर्टेड इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, सो अगेन दे आर फॉर्मिंग द वैल्यू टोटल जीरो। So here we are found that these two force cancels their effect each other, as well as these two forces are also cancel their effect of each other. Okay, so there is no effect on the O, so we are found that the total net force on the O, that is plus 1 microcoulomb, will be what, जीरो। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। तो आपको फाइनल आंसर है वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा अंदर। समझ में आ गया बराबर। यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है उसको फॉलो मत करना, मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया वो पहले आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है, फिर आपको सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू गिव टू स्टेटमेंट दैट वाई FOA एंड FOB बहुत जीरो हो गए। उसी तरह FOB और FOD दोनों जीरो क्यों हो गए, उसके रीज़न दो, उसको 1 और 2 दे दो, और फिर आपको सिंपली लिखना है कि FO इक्वल टू FOA FOB ऐसे एडिशन कर दो, बराबर। फिर बोलना है कि फ्रॉम 1 and 2, बराबर, ये दो जीरो ये भी दो, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा भाई, जीरो होगा कि नहीं होगा। उस तरह से आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ ये एग्जाम्पल लिखना है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? चल, फिर उसके बाद हमको एक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ दिस थियरी ऑलरेडी वी टॉट इन 10th स्टैंडर्ड, ओके, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस थियरी पार्ट, एज दिस इज अ थियरी पार्ट, so that's why I am covering this example in this video. Okay, so what is the question? An electrostatic field line is a continuous curve, that is field line cannot be sudden breaks. Why not? बोलना क्या चाहते हैं कि if any charge, okay, and then its electric field will be continuous, not dash 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 type, यानी कि कुछ टाइम पे होगी कुछ टाइम पे नहीं होगी, कोई ब्रोकन बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो उसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, बराबर। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप अगर अपने चार्ज की फील्ड को अज्यूम कर रहे हो कि सपोज उसका कुछ ब्रोकन पार्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर कोई दूसरा चार्ज प्लेस करूँगा तो उस पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा, पर यहाँ पे रखोगे तो लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अगर ब्रोकन पार्ट है तो अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर जब हम प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं तो पता क्या चलता है कि मैं ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एरिया है वहाँ कोई भी डिस्टेंस में मैं अदर चार्ज रखूँगा तो उस पर फोर्स लगेगा 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 लगेगा।
बराबर। और जब भी फोर्स लगेगा तो रिपल्सिव टाइप का होगा, तो यहाँ से इस तरह से कंटिन्यूसली दूर जाएगा, और अट्रैक्टिव होगा तो कंटिन्यूसली क्या आएगा, नज़दीक आएगा। तो यहाँ पे कोई भी जगह लूप होल है ऐसा कुछ है ही नहीं अंदर, इसलिए यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रूव होता है कि यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूस कर्व, इट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ब्रेकेज। ओके, तो हम थियरी भी एक बार समझ लें अंदर फिर से अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग टू एनी ऑब्जेक्ट where any charge system is found to be existing at every point surrounding it with a definite magnitude and definite direction up to the infinite region in the 3 डायमेंशन, यानी कि तीनों के 3 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट पे कोई भी डायरेक्शन में वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू का मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा 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 लगेगा। वही चीज़ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग टू एनी चार्ज सिस्टम इज फाउंड टू बी एग्जिस्टिंग एट एवरी पॉइंट सराउंडिंग इट विथ अ डिफाइंड मैग्नीट्यूड एंड डिफाइंड, यानी कि उसका सराउंड का जितना भी पार्ट हर पॉइंट पे अवेलेबल है, और वहाँ पे उसका एक डिफाइंड मैग्नीट्यूड होगा और डिफाइनेट डायरेक्शन होगी और इनफाइनेट रीजन तक लगेगा अंदर, क्योंकि हमको पता है दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स एंड इन 3 डायमेंशन। ऐसा नहीं कि एक्स में लगेगा तो वाई में नहीं लगेगा अंदर। And we know that the presence of electric field is depicted pictorially by the electric field line। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पिक्चर से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे बोला कि कोई भी जगह पे वो एग्जिस्ट नहीं है, ऐसा तो है नहीं, तो फिर हमको हर पॉइंट को कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है वो भी क्या करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस ड्रॉ करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बराबर वही चीज़ लेके है। Hence, if the electric field exists everywhere surrounding to the charge system, then electric field line also must be defined, which can end up only at the infinity. Till then, they have to continuous। तो इन्फिनिटी तक है तो वहाँ तक आप खींचनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूस है। एंड दे कैन नॉट बी सडन ब्रेक्स इन बिटवीन, यानी कि बीच में कोई ब्रेक डाउन जैसा पॉइंट नहीं अंदर, बराबर। हाँ, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर कोई चार्ज की बॉडी के अंदर दूसरा कोई चार्ज इन्फ्लुएंस कर रहा है, 2 चार्ज तो हमारे ऑलरेडी थे, एक टेस्ट चार्ज और हमारा एक सोर्स चार्ज, बराबर, पर वो यहाँ पे कोई तीसरा कर रहा है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, समझ में आ रहा है। पर अगर 2 चार्ज बॉडी की बात कर रहे हो तो ये कभी भी पॉसिबल होगा नहीं अंदर, समझ में आ गया। और दूसरा उसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, वहाँ पे बोला गया कि वाई 2 field lines never cross each other at any point. Okay, for whenever we have to find out the direction of the electric field, for that which point we are taking in our mind, whatever point you have to take, and at that point you have to draw the tangent. So whatever the direction of the tangent, that is considered as the what, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। अदरवाइज फोर्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अंदर, बराबर। बट if 2 electric field lines intersect each other, then at the intersecting point you will be find out that 2 tangents. So this point indicate there are the 2 different direction of the electric field at the same point, which is practically not possible. Why? Because whenever you are placing any point charge at this intersection, it will go in the only one direction, बराबर। तो 1 डायरेक्शन जाए तो कब जाएगा, अगर एक लाइन होगी तो ही जाएगा ना, अगर 2 लाइन होगी तो दोनों का इन्फ्लुएंस से आपको कोई तीसरी डायरेक्शन मिलने का चांसेस है कि नहीं अंदर, समझ में आ गया। तो ये 2 रीज़न से आप ये थियरी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो। तो हमारी टेक्स्ट बुक के सजेशन में क्या दिया है अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, द टेंजेंट ड्रॉन एट एवरी पॉइंट ऑन विच गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। हैंस 2 or more electrons cannot intersect any point in the electric field, because if they do so, अगर वो intersect हुए, then electric field would exist at point in more than the one direction along the more than one tangent drawn at that point, which is practically and theoretically in both way it is not possible. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 एग्जाम्पल थे हमारे एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किए। इसके बाद के इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन आफ्टर अगेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।